Psalms 37 verse 9 said, वचन संहिता 37:37 और 9वां वाक्य, "For the evildoer shall be cut off, but those who wait upon the Lord shall inherit the land." क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Just yesterday we concluded on a series कल जो है श्रृंखला की समापना हुई, which we titled as Lessons on Waiting upon the Lord. जिसका शीर्षक ये था लेसन्स ऑन वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। In this 5-part series, और ये पांच भाग के सीरीज में the Lord was faithful enough to teach a whole lot of things to us. परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता में काफी सारी चीजें हमको सिखाई। I'm sure that has inspired to wait upon the Lord in spite of every pressure that you're facing in your life. और मैं निश्चय जानता हूँ कि इससे आपको प्रेरणा मिली है कि आप परमेश्वर पर निर्भर रहे, दबाव जो आपके जीवन में है उसके बावजूद। As I was waiting upon the Lord this morning to hear from Him to get a word for this evening, और जैसे मैं परमेश्वर की ओर देख रहा था इस शाम के वचन के लिए, the Lord spoke to me something, परमेश्वर ने कुछ मुझसे कहा है and that is exactly what I want to bring to you. और वही बातों को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। This is one last word on waiting. ये जो है रुकने पर एक आखिर का शब्द है। I want us to open our Bibles to Genesis 32. और पवित्र शास्त्र को हम खोलेंगे उत्पत्ति 32 Let's read from 24 to 26. 24 से 26। I'm reading for you in the NKJV version. It says, "Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day." Verse 25. "Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him." Verse 26 and final. "And he said, 'Let me go, for the day breaks.' But he said, 'I will not let you go unless you bless me.'" और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। This is one of the most popular incidences in the Old Testament. ये पुराने नियम का एक जाना माना संदर्भ है। We can see that Jacob is in the third phase of his life. हम देखते हैं कि याकूब जो है अपने जीवन के तीसरे भाग में है। The first phase that Jacob lived in his father's house. और पहले भाग में हम देखते हैं कि याकूब जो है अपने पिता के घर में रहते हैं। The second phase he lived in his father-in-law's house. और दूसरा भाग हम देखते हैं कि वो अपने ससुर के घर में रहते हैं। The third and the fourth phase of his life he lived in the heavenly Father's hands. और तीसरा और चौथा भाग उसके जीवन का वो जो है अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में था। As he was about to embark into the third phase of his और life, जैसे वो अपने जीवन के तीसरे भाग में प्रवेश करने ही वाला था, he yet again came face to face with his maker. और फिर एक बार जो है अपने सृष्टिकर्ता के मुखामुख वो आया। When he was all alone, when everything that was so close to him, he separated himself from it. और जब सारी बातें जो उसकी बहुत हृदय के बहुत नजदीक थी, वो सारी बातों से अपने आप को उसने अलग कर दिया। He found an angel came and wrestled with him. और उसने देखा कि वहाँ पे एक स्वर्गदूत आता है और उसके साथ मल्लयुद्ध करता है। And then the angel said that he prevailed against him. और वो स्वर्गदूत जो है कहता है कि याकूब जो है मुझ पर प्रबल हो रहा And है। that is how Jacob became Israel. और देखिए ऐसे ही याकूब जो है वो इज़राइल में बदलते हैं। This morning I want us to ponder on a very, very important truth. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि ये सत्य पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Jacob's victory did not come by wrestling with the angel of और God. देखिए याकूब का जय जो है इस मनुष्य से मल्लयुद्ध करके नहीं मिला है उसको। Jacob's victory came by clinging to the angel of God. और देखिए उसका जय जो है उसको तब मिला जब उसने उस स्वर्गदूत को पकड़ कर रखा था। In no way, in no form that Jacob would have wrestled with the angel of God and overcome him. और किसी भी रीति से अगर सोचा जाए तो याकूब जो है स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध करके वो जीत ही नहीं सकता है। In that losing battle, वो हारने वाले युद्ध में all that Jacob did was to
cling to the angel of और God. याकूब ने ये किया कि उस स्वर्गदूत को कसकर उसने पकड़ लिया। Listen to this carefully. ध्यान से सुन This is लीजिएगा। what the Lord said. यही परमेश्वर ने कहा। This is one lost word on waiting. और ये यहोवा की बाट जोने पर का एक आखिर का शब्द है। Waiting is all about clinging to the और Lord. देखिए परमेश्वर पर जब हम निर्भर रहते हैं, उनके लिए अगर हम रुके हुए रहते हैं तो ये है कि हमने उनको पकड़ कर रखना है, कसकर धर कर रखना है। It's quite possible that the pressures that we experience may make us to think we should let go. और ये हो सकता है कि जो दबाव का हम सामना कर रहे हैं या जो दबाव हम पर हम महसूस कर रहे हैं, उससे जो है हम विवश हो जाते हैं कि हम छोड़ दे सब कुछ। But those who wait upon the Lord, लेकिन वे लोग जो परमेश्वर की बात को जोते हैं, they will cling to the Lord वे परमेश्वर को कसकर पकड़ लेंगे until they know जब तक वे जानते हैं they are in the perfect will of God. कि वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में है। My brothers, my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, Jacob was a blessed man. याकूब एक आशीषित व्यक्ति थे He left his father's house as a single person. और वो अपने पिता के घर को उसने छोड़ा था, अकेला छोड़ा था। He left his father-in-law's house with a huge multitude. और अपने ससुर के घर को जब छोड़ के आया तो काफी सारे लोग उसके साथ थे। Many wives, बहुत सारी पत्नियां, concubines, पत्नियां, children, बच्चे, cattle, भेड़ बकरियां, a flock, बहुत सारे men चीजें। servants and maid servants. जो सेवक जन थे, पुरुष, स्त्रियां। The word of God says Abraham was rich, Isaac was very rich, and Jacob was very, very rich. वचन में लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो है बहुत रईस थे, याकूब जो है उनसे भी ज्यादा रईस थे, और क्षमा कीजिए ईसाक उनसे भी ज्यादा रईस थे, और याकूब जो है बहुत ही ज्यादा रईस थे। What blessings Jacob is seeking now. और अभी जो है क्या आशीर्वाद के लिए याकूब मांग रहे He हैं। was no more seeking for the physical और blessings. देखिए वो शारीरिक आशीर्वाद के लिए नहीं मांग रहे थे He यहाँ पे, wanted that one invincible thing. और वो चाहते थे वो आशीष को, That one invincible thing was intimacy with the Lord. वो आशीष जो परमेश्वर के साथ नजदीकी है। He wanted to become one with वो God. चाहता था कि परमेश्वर के साथ में वो एक हो जाए। He wanted to fall in line with the plans and the purposes of वो God. चाहता था कि परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार वो चले। He wanted to see God's plans flourish in his life. वो चाहता था कि परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन में सफल हो। You know what? क्या आप जानते हैं, When he separated himself from everybody, जब उसने अपने आप को सब किसी से अलग कर दिया, he had made up his mind to wait upon the Lord. उसने अपने मन को बना लिया था कि वो यहोवा की बाट को जोहेगा। You know what? When the angel faced him, और आप जानते हैं जब स्वर्गदूत ने उसका सामना किया, when they were wrestling, जब वे मल्लयुद्ध कर रहे थे, all he did was to cling and wait upon the Lord. और उसने सिर्फ ये किया कि वो परमेश्वर पर निर्भर रहा, परमेश्वर पर रुका रहा। That waiting broke him. और वो रुकना जो है, वो रुकने ने उसको मानो तोड़ दिया, That waiting completely broke him. पूरी रीति से उसको तोड़ दिया। That breaking was evidenced in his walk all through the rest of his life. और उसका जो शेष जीवन में हम देखते हैं, उसके चाल में ये टूटना या तोड़ना का हम लक्षण को देखते हैं। You can see evidently the brokenness of Jacob in every step that he took in the rest of his life. और उसके शेष जीवन के शेष भाग में हम देखते हैं उसके हर एक कदम पर जो उसका टूटापन हम देखते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, know it very clearly. आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ Those लीजिएगा। who wait upon the Lord, वे लोग जो परमेश्वर की बात को जोते हैं, they will surely be broken, वो निश्चय ही उनको तोड़ा जाएगा, and they know what it means to cling to the Lord. और वे जानते हैं कि परमेश्वर को कसकर पकड़ना इसका क्या मतलब In है। their brokenness, they will cling to the Lord. और उनके टूटेपन में वो परमेश्वर को पकड़ कर रहेंगे। In every step that they take, you can see the brokenness. और जो कदम को वो बढ़ाते हैं, आप वो टूटेपन को वहां पे देख सकते हैं। In that brokenness, that the Lord Almighty will be richly glorified. और उस टूटेपन में जो है परमेश्वर को महिमा मिलेगी। If you allow this last one word on waiting upon the Lord, अगर आप होने देते हैं कि ये जो आखिर का शब्द परमेश्वर पर निर्भर रहना, इसको आप सुनते हैं, if you seek just the way that Jacob sought the face of God, अगर आप जो है याकूब ने जिस प्रकार से यहोवा के मुख को खोजा, उस प्रकार से आप भी यहोवा के मुख को खोजते हैं, if you're ready for that brokenness, अगर आप वो टूटेपन के लिए तैयार हैं, your blessings will be manifold. आपके आशीष जो है वो अद्भुत होंगे। Just a man became a nation, एक व्यक्ति जो है वो देश बन गया, and that nation, that man, out of that man
came the salvation for the rest of the nations. और उस व्यक्ति के जरिए देखिए पूरे देश देश के लिए, देशों के लिए उद्धार का मार्ग खुला. You do not know what blessings that you can bring to the generations that you live in and even the future generations that are coming up. आप नहीं जानते हैं कि आप जो है कैसे आशीष को छोड़ सकते हैं जिस पीढ़ी में आप रह रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी. But remember, it all begins by waiting at the feet of God. लेकिन इसकी शुरुआत देखिए, याद रखिएगा, परमेश्वर पर निर्भर होकर, परमेश्वर की बात को झोंकर होता है. I pray let this truth settle in your heart. मेरी प्रार्थना ये है कि ये सत्य आपके हृदय में बस जाए. I pray that you may crave for that intimacy with God. मेरी प्रार्थना ये है कि आप परमेश्वर के साथ में वो घनिष्ठ रिश्ते की लालसा करें. I pray that you may fall in line with every plan and purposes of और God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर के उद्देश्य और उनकी योजना के अनुसार अपने जीवन को चलाएं. I pray that you may receive every blessing that is in Him in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है आपके लिए कि उनमें जो भी आशीष है, जो भी आशीर्वाद है, वो सारे आशीर्वाद आपका भाग हो मसीह यीशु के नाम से. With these thoughts in mind, और ये इन विचारों को अपने मन में रख के, understanding, knowing that the Lord is ready to bless you, ये जानते हुए, समझते हुए कि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है. provided that you wait upon Him, अगर आप उनकी ओर देखे रहते I हैं, want us to go into the week. आप हफ्ता में जाइएगा, Rather, I want us to go into the weekend, आप जो है वीकेंड में जाइएगा, क्षमा कीजिएगा, seeking the face of God, परमेश्वर के मुख को खोजते हुए, waiting upon Him, उन पर निर्भर होते हुए, not letting Him go. और उनको जाने मत दे. Just the way that Jacob did not let the angel of God go, जिस तरह से याकूब ने उस मनुष्य को, उस स्वर्गदूत को जाने नहीं दिया, until that he blessed him. जब तक कि उसने याकूब को आशीर्वाद नहीं दिया. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे. Have an amazing weekend. आपका वीकेंड बहुत ही अद्भुत जाए.